Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on merger and acquisition. So let us see data given in this scenario. So we are given that so A Limited wants to acquire B Limited and has offered a swap ratio of 2 shares for every 3 shares of B Limited. The following information is available for A Limited and B Limited. Profit after tax is given in rupees. Number of equity shares are given for both companies. Earning per share is given and price earning ratio is given. Now different MCQs are given. Like number 1, we have to calculate the earning per share of A Limited after acquisition. तो पहले डेटा ड्रॉ करके हैं तो दो कंपनीज आपको मेंशन की है. नंबर 1 इज A Limited, सेकंड इज B Limited. So we are given their profit after tax is given, PAT is given, amount है आपका रुपीज में. For A company 21 lakh and for B company this is 4,50,000. Then the number of equity shares are given. Let us write NE, number of equity share of A and B 6 lakh and 1,80,000. So again we are given EPS and price earning ratio. EPS आप कैलकुलेट कर सकते हैं टैग अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स. दिस इज गिवन ₹3.50 पर शेयर एंड 450/180 दिस इज ₹2.50. Then price earning ratio is also given, PE ratio. So this is our 10 times and 7 times. तो ये आपकी है टाइम्स में. Then swap ratio is given. Swap ratio होती है exchange ratio. So swap ratio is given which is also कहा जाएगा exchange ratio. It means how many share A will issue for number of share of B. This is 2:3. So for every 3 share of B, it will get to 2 shares of A company. This is swap ratio. So now let us see MCQ number 1. We have to calculate earning per share of A Limited after acquisition. So first MCQ. So we have to calculate earning per share of A after acquisition means of AB. तो इसका फार्मूला बन जाएगा दोनों की अर्निंग्स को ऐड कर रखे हैं अर्निंग्स ऑफ ए बी और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए बी आपके मर गया. टोटल अर्निंग्स है 21 + 450 जिसे 25,50,000. नंबर ये 6 लाख ए के शेयर्स हैं प्लस इट हैज टू इशू न्यू शेयर्स 2:3 2/3 इनटू इसके शेयर है 180. इट मीन्स टोटल अर्निंग्स 25,50,000 और टोटल शेयर्स आपके बन जाएंगे. दिस इज 360 into 120. टोटल शेयर आर 720. So this will be our EPS after merger 2550 divided by 720. So rupees 3.54. See which option is correct. In this case answer is option B. Then we have a second MCQ. We have to determine the equivalent EPS of B Limited and calculate per share gain or loss to shareholder of B Limited. तो आपने देखनी है इक्विवेलेंट EPS कितनी है B की. व्हाट इज इक्विवेलेंट EPS ऑफ B Limited. इसका फार्मूला होता है जो आपकी एक्सचेंज रेशो है स्वैप रेशो. लेटर से स्वैप रेशो डिनोट कर रखे हैं ER से एक्सचेंज रेशो इनटू EPS ऑफ AB विच इज आफ्टर मर्जर. इसमें स्वैप रेशो है आपकी 2:3 इनटू EPS है आपकी 3.54. सो दिस विल बी अवर इक्विवेलेंट EPS आफ्टर मर्जर. सो 3.54 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 2.36. फिर आपको देखना है इसमें कितना गेन या लॉस हो रहा है. इसको कंपेयर कीजिए उसकी पुरानी EPS से 2.50. इसमें आपको लॉस हो रहा है लॉस पर शेयर. इसे 2.50 minus 2.36. So rupees 0.14 per share. You can see which option is correct. Answer is option number C. Next we have MCQ number 3. So we have to determine the expected market price per share of A Limited after acquisition assuming its price earning multiple remains unchanged. अब आपको प्राइस निकालना है ऑफ AB मीन्स जिसे कहा गया आफ्टर मर्जर. इसका फार्मूला बन जाएगा EPS आफ्टर मर्जर ऑफ AB कंपनी इनटू प्राइस अर्निंग रेशो ऑफ एक्वायरिंग फर्म. तो EPS देखो आपने कैलकुलेट की थी जिस बाकी 3.54. प्राइस अर्निंग कह रहे हैं कि वो सेम रहेगी. सो दिस इज 10 टाइम्स.
So price after merger will be rupees 35.40 per share. Now you can see which option you correct. Answer is your option number A. Next is your fourth MCQ. We have to determine the market value of a merged firm. So what is meant by market value of a merged firm? इसके लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ शेयर ऑफ मर्ज फर्म, इट मीन नंबर ऑफ ए बी इनटू प्राइस ऑफ ए बी। देखो ए नंबर ऑफ ए बी कितने होंगे, जो नंबर ऑफ ए हैं विच इज गिवन टू अस, और प्लस जितने शेयर आपने इशू किए हैं बी को, उसका फार्मूला है एक्सचेंज रेशो इनटू नंबर ऑफ बी इनटू कर लीजिए प्राइस ऑफ ए बी। नंबर ऑफ शेयर ऑफ ए आपको मेंशन किए हैं 6 लाख, और बी को देखो आपने शेयर इशू किए थे 2/3 ऑफ 180 इनटू प्राइस ऑफ ए बी 35.4। अब ये टोटल शेयर आपके बन रहे हैं 720 इंटू 35.40। तो दिस विल बी मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म। तो 35.4 इंटू 7,20,000, तो रुपीज़ आपके लैक्स में आ जाएंगे 254.88 लैक्स। This is market value of merged firm. You can see which option is correct. So in this case, answer is option C. Next we have MCQ number 5. So they are saying after the announcement of merger, price per share of B Limited rose by 10%. And Mr. X, an investor having 10,000 shares of B Limited, is having another investment opportunity which is annual return of 12%. So calculate the return to investor if he accepts the shares from B Limited. तो आपको डिटर्मिन करना है कि एक इन्वेस्टर है बी लिमिटेड का, मतलब ये इन्वेस्टर ऑफ बी लिमिटेड, तो इसके पास हैं 10,000 शेयर्स, है कि 10,000 शेयर्स ऑफ जिस बी कंपनी। तो इफ जिस मनी की इन्वेस्टर यदि वो अपने शेयर को सेल कर रखा है और उसको कहीं और इन्वेस्ट करके उसको रिटर्न मिल रही है 12%। It means this is given return from this is cargo of loading means from selling shares of this B company, this return is given 12%। पर आपको कैलकुलेट करनी है तो यदि वो अपने शेयर को सेल नहीं कर रहा है, इट मीन्स ही एक्सेप्ट्स द स्कीम ऑफ मर्जर, तो उसको कितनी रिटर्न मिलेगी। तो रिटर्न फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ मर्जर आप पर शेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए आपको अब मर्जर के बाद रिटर्न मिलेगी ईपीएस के थ्रू, इसमें एग्जैक्टली इक्विवेलेंट ईपीएस, तो वो आपकी अर्निंग आ जाएगी इक्विवेलेंट ईपीएस। फिर आप देखिए यदि आप शेयर को सेल करते हैं उससे जो कैश आपको मिलना है वो नहीं मिलेगा, वो आपका बन जाएगा अपॉर्चुनिटी आउटफ्लो। उसको डिवाइड कीजिए अपॉर्चुनिटी आउटफ्लो से, अपॉर्चुनिटी आउटफ्लो इट मीन्स एक तरीके से बन गई आपकी इन्वेस्टमेंट। उसके ऊपर आप देखिए कि कितनी रिटर्न आपको मिल रही है। तो इक्विवेलेंट ईपीएस देखो आपने कैलकुलेट की कि ईपीएस की आपके नंबर के 3.54 और फार्मूला क्या उसका एक्सचेंज रेशो इंटू 3.54, ये आपकी इक्विवेलेंट ईपीएस है। अब आपका शेयर है बी कंपनी का, उसका देखो कितना मार्केट प्राइस है बी का, इसका मार्केट प्राइस है ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशो, दिस इज 2.5 इंटू 7, दिस इज 17.5। बट अब इस शेयर का प्राइस 10% राइज भी हो गया है मार्केट में, लेकिन यदि आप इसको सेल करके हैं वो सेल होगा आपका 110% के ऊपर, तो ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी अपॉर्चुनिटी। अब आप देखिए इस पैसे पर आपको कितनी रिटर्न मिलती है। लेकिन से 3.54 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 जिसे 2.36, नीचे आपकी इन्वेस्टमेंट है 17.5 प्लस 10% 19.25 into 100. So this return is 236 divided by 19.25, तो 12.26%। और ये रिटर्न आपकी ज़्यादा है 12% जो आपको मिल रही है फ्रॉम अनदर अल्टरनेटिव। तो दिस इज बेटर ऑप्शन, दैट वी शुड एक्सेप्ट स्कीम ऑफ मर्जर। लेट अस सी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। In this lecture, we discuss a scenario based on merger and acquisition. Further topics we will discuss in further lectures. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।